one by one programming, and I want all of you to try this program simultaneously. The first program is hello world. If you go by this, ऐसे बहुत छोटा प्रोग्राम है, 4-5 लाइन का ही है, तो हम इसको सीधा रन करके देखते हैं. आपको कोड ब्लॉक्स टाइप करना होगा, या फिर जो ऑनलाइन कंपाइलर यूज कर रहे हैं वो वहां पे रन करो. Code blocks, when you start, first thing what you have to do is create a new source file. So पहले code blocks install करना आपको सीखना होगा. Code block install करने के बाद environment variables में इसका path डालना भी बहुत जरूरी है. Okay, so now you go to the file, go to the new, okay, and inside that new again you go to the file. Select C++ source, click OK, then click next, select C, click next. यहाँ पे you choose a file name. So this is revision program 1. So I will say rev1 and click save and click finish. Now you paste the code. So this time I am not writing all the codes, but we will just understand line by line. थोड़ा मैं कंट्रोल करके जूम कर रहा हूँ. So पहली लाइन जो है include stdio.h, this is for the library. Then int main, this is where we write your actual program. Now printf is the statement that we are writing hello world, और यहाँ पे आप खुद का नाम लिख के देखो ताकि एग्जीक्यूशन आप ही के प्रोग्राम का हो रहा है ये कंफर्म हो जाए. देन रिटर्न 0, कुछ लोग यहाँ पे गेट ch भी लिखते हैं, एंड देन यू एंड द प्रोग्राम. तो बहुत सिंपल सा कोड है, एंड आपको रन करने के लिए ये बटन दबाना होता है, बिल्ड एंड रन, एंड देन you should see the output hello Ninad over here. Okay, this is the first program for printing the value to the user screen. आप simultaneously ये कोड कर सकते हो, मैं आपको चैट बॉक्स में पेस्ट भी कर रहा हूँ कोड, so you can take these codes from here and also you can run them with me. Okay, so now the next program, this is only about the output. So now we will print an integer entered by the user so that we know how to get the input from the C program. So let's go ahead again. I will go to the file, new, go to the file, select C++, click next, select C, click next. Then we go for the file name. This is the second revision program, so I will say rev2, click save, click finish. So in the second program, again I will press Ctrl and then mouse scroll to zoom it up. So in second program we start with the inclusion of stdio.h because the standard input output are inside this library. Then int main is the starting point of any program. Int number, where we want to enter a number, so we declare it. Then we don't leave a space. Printf, enter an integer. This is what you ask from the user. Then you read the input and scan it. So since it was integer is %d, and then add the memory address attached to this num. So and ampersand means address of that number, and you store it. So now the number is stored, you want to display that. So again another printf statement saying that you have entered %d comma number. Okay, new student, do you have any doubt with this code or is that clear? यहाँ पे देखो ये जो होती है वो फिल इन द ब्लैंक होती है, %d. यहाँ पे %d दिखाई नहीं देता, उसकी जगह ये नंबर जो लिखते हैं वो यहाँ पे डिस्प्ले होता है. और ये जब स्कैन करते हैं तो भी %d लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ नंबर की जगह एम्परसैंड नंबर लिखते हैं, दैट इज एंड नंबर लिखते हैं. ठीक है, तो स्कैनएफ के साथ एंड, प्रिंटएफ के साथ नथिंग, ये याद रखो. और ये नंबर जो है उसकी जगह मैं a लिख दूंगा तो भी चलता है. सो आई कैन राइट a ओवर हियर, I can write a over here. So तीनों जगह change कर दो and then you can run the code. Okay. So it is asking me enter an integer. I have entered 5 और यहाँ पे you have entered 5 करके दिखाई दिया.
Am I clear with this code? Any doubts till this point? No, sir. सोहेल, सरगम, रुद्र, आप ये कर पाओगे? कोड सिंपल है, स्कैनएफ, प्रिंटएफ। Yes, sir. ठीक है, अभी तुम तीनों ही हो, तो कोई भी डाउट हो मुझे बिंदास पूछ लेना, बिल्कुल डरना मत। हाँ सर, हाँ सोहेल बोलो। जैसे आपने अभी पहला वाला कोड लिया, फिर दूसरा वाला फाइल बना लिया आपने। हाँ करेक्ट। सर मैंने देखा है कि कुछ जो कोड करते हैं तो सर वो ऐसे इसी के बाद नया कोड स्टार्ट करते हैं तो उनका आउटपुट आ जाता है। हाँ हाँ, नया फाइल इसलिए बनाते हैं कि नई एक सी बन जाती है ना। जितनी बार भी मैं कोड लिखूंगा नया नया, उतनी उसकी एक सी बनेगी। मैं यही कोड पुराने फाइल में भी पेस्ट कर सकता था, लेकिन फिर पुराना कोड जो होता है वो ओवरराइट हो जाता है। तो तुम्हारा डाउट क्या है इसमें? नो सर, ऐसे। समझ में आया सोहेल, या तुम्हारा डाउट है कुछ? यस सर आया समझ। हाँ ठीक है, तो अभी हम तीसरा प्रोग्राम सीखते हैं। अभी तक के दो प्रोग्राम आपको समझ में आए। एक पहले वाले में हमने सिर्फ डिस्प्ले किया हेलो निनाद, दूसरे वाले में हमने यूजर जो है उससे एक इंटीजर मांगा। तो हमने अभी इनपुट ऑपरेशन सीखा और आउटपुट ऑपरेशन सीखा। नेक्स्ट में हम लोग दो नंबर्स को ऐड करेंगे। ठीक है, इन दो नंबर्स को ऐड करने के लिए यूजर से ही उन दो नंबर्स को मांग लेंगे। तो एक छोटा सा कैलकुलेटर हम बनाएंगे। ठीक है, so again I go to the file, I go to the new, okay, I go to the file again, I will say C++ source, click on go, then click next, select C file, click next, then I will go to the browse, I will say this is my revision program 3, so I will click save and I will say finish. Now I will paste. अब मैं टाइप करने में टाइम नहीं वेस्ट कर रहा हूँ, सिर्फ एक्सप्लेनेशन दूंगा मैं, क्योंकि ऑलरेडी वो स्लो वाले लेक्चर्स हम रिकॉर्ड कर चुके हैं। ठीक है, तो इन केस आपको ये टाइप करने में दिक्कत आ रही है तो मैं आपके चैट बॉक्स में इसको पेस्ट कर ही रहा हूँ। पर आइडियली हम सी प्रोग्राम कभी भी ऐसे कॉपी पेस्ट नहीं करते, हम हमेशा खुद से टाइप करते हैं। ठीक है, एटलीस्ट फर्स्ट ईयर में। सो इंक्लूड stdr.h int main, यहाँ पे ये दो चीजें हमेशा हर प्रोग्राम में कॉमन रही है, और ये लास्ट की दो लाइनें भी हमेशा हर प्रोग्राम में कॉमन रही है। तो ये कॉमन चीजें हमेशा रख लो। फिर इंट नंबर 1 नंबर 2 जो यूजर से लेने हैं वो दो नंबर, और उनकी एडिशन के लिए सम, ये तीन चीजें हमने डिफाइन की। इंट उसका डेटा टाइप है, मतलब आप मैं यहाँ पे 13.5 नहीं डाल सकता, इट विल थ्रो एन एरर एट मी, क्योंकि मैंने बोला है कि जो भी यूजर नंबर देगा वो पूरा नंबर होना है। 13.5 इज नॉट अ होल नंबर, 13 इज अ होल नंबर, 14 इज अ होल नंबर। तो INT जब डिफाइन करते हो तो बीच का नंबर नहीं आ सकता। ठीक है, फिर एंटर टू इंटीजर्स, सो वी एंटर्ड द टू इंटीजर्स, %d से उनको स्कैन किया। अब लास्ट टाइम हमने एक वक्त पे एक इनपुट लेना सीखा था, अभी एक वक्त पे दो इनपुट हम लेना सीख रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट अभी हम लिख रहे हैं एम्फेसेंड नंबर 1 एम्फेसेंड नंबर 2। तो हम दो नंबर्स ले रहे हैं, फिर सम इक्वल टू नंबर 1 प्लस नंबर 2, इनका समेशन हम कैरी आउट कर रहे हैं। देन printf %d प्लस %d, उनको डिस्प्ले करने के लिए ये एडिशन यहाँ नहीं हो रहा है, एडिशन हमने यहाँ ही लिखा है, सम इक्वल टू नंबर 1 प्लस नंबर 2। प्रिंटफ में यहाँ बस हम उन दोनों की एडिशन दिखने में अच्छा दिखे इसलिए ऐसे कर रहे हैं, और जो एक्चुअल एडिशन हुआ है वो तीसरा %d है। फिर आगे हम लिखते हैं कॉमा देके नंबर 1, कॉमा देके नंबर 2, कॉमा देके नंबर 3। यहाँ पे देखो स्कैनएफ में भी हमने दो बार %d लिखा, लेकिन एम्फेसेंड नंबर 1 और एम्फेसेंड नंबर 2 के बीच में ये कॉमा देना जरूरी होता है, और एंड में सेमीकोलन देना भी उतना ही जरूरी होता है। सी प्रोग्राम में कोई भी लाइन बिना सेमीकोलन के टर्मिनेट मत करो। ठीक है, फिर सम, ये एक्चुअल एडिशन यहाँ होता है, मैथ्स का बॉडमास फॉलो होता है, मतलब ब्रैकेट इज सॉल्व्ड फर्स्ट, देन डिवीजन, देन मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन। रिमेंबर, whenever you are doing mathematical operation, BODMAS is followed, and that's why you always put the bracket for the operation you want to do first.
and many students make mistake in that. Okay, next is int main printf %d number 1, number 2, number 3, and then sum is returned, and finally return 0. Okay, so this is the code. Let's run this. It is asking me for enter two integers. I have entered 4, I have entered 5. Addition आना चाहिए 9. So it is showing me 4 plus 5 9. So this is executed correctly, and now I can paste this code to you into the chat box. Simultaneously ये कोड मेरे साथ रन भी कर सकते हो, या फिर बाद में आप आराम से बैठ के भी रन कर सकते हो इनको. यहाँ तक क्लियर है आपको तीनों कोड? यस सर. तो पहले वाले में हमने इनपुट लेना सीखा, दूसरे वाले में पहले वाले में आउटपुट दिखाना सीखा स्क्रीन पे, सेकंड वाले में इनपुट लेना सीखा, अभी थर्ड वाले में हमने मैथमेटिकल ऑपरेशन करना सीखा. ठीक है, फोर्थ प्रोग्राम है, उसमें हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर्स कर रहे हैं. ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में अभी हम नया डेटा टाइप सीखेंगे डबल, क्योंकि अब तक हम सिर्फ इंटीजर्स पे काम कर रहे थे, एडिशन भी इंटीजर्स का ही किया. सो इस बार हम नया कोड जो है उसमें डबल यूज करेंगे. अगेन आई विल गो टू द कोड ब्लॉक्स, फाइल, न्यू. नाउ आई विल गो टू द फाइल C++ source, select that, click OK, go, click next, select C, click next. यहाँ पे हम फाइल नेम देंगे. अभी अपना ये रिवीजन का फोर्थ कोड है, सो आई विल से REV4, click save, click on finish. Again I am saying don't copy paste any code जैसे मैं कर रहा हूँ. I am just doing copy paste to save the time. Otherwise you are not supposed to copy paste any code, क्योंकि जो हम टाइपिंग में मिस्टेक करते हैं वो टाइपिंग के मिस्टेक के बाद ही याद रह जाता है जिंदगी भर. तो वो मिस्टेक करना जरूरी है, इसलिए टाइप करो. ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द मेन कोड. इंक्लूड str.h और int, ये पहले 2 लाइन और लास्ट के 2 लाइन हमेशा सेम रहते हैं. ठीक है, देन डबल, ये डेटा टाइप है जिसमें हम A, B और प्रोडक्ट ये 3 चीजें पास कर रहे हैं, एंड देन वी आर आस्किंग यूजर टू एंटर द नंबर. इस बार चेंज इतना ही है कि %d की जगह %lf यूज किया है, बाकी एम्फरसेंड A, एम्फरसेंड B लास्ट टाइम हमने नंबर 1 नंबर 2 लिया था. फिर प्रोडक्ट इज इक्वल टू दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन. अब आप पूछोगे यहाँ पे इंटीजर लेते तो क्या फर्क पड़ता? कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इंटीजर भी ले सकते थे. जो प्रोडक्ट जो है वो भी इंटीजर टर्म में ही आएगा इंटीजर का. फाइनली प्रोडक्ट इज इक्वल टू अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक एंट्री दे दो. और फिर ये LF या F है, ये किस पे डिपेंड करता है कि आप डबल ले रहे हो या फिर सिर्फ फ्लोट ले रहे हो. तो डबल के लिए हम LF यूज करते हैं और फ्लोट के लिए सिर्फ F लिखते हैं. और ये जो 0.2 है इसका मतलब क्या है कि अगर आपका रिजल्ट 13.1579 है तो ये 0.2 मतलब 13.15 आपका फाइनल आंसर बताएगा, आगे का 79 डिलीट कर देगा. तो ये 0.2 मतलब अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस एक्यूरेसी दिखाओ. ठीक है, अगर इसको मैं 0.4 करूंगा तो अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस एक्यूरेसी आएगा. हम टिपिकली इंजीनियरिंग में अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस मतलब बहुत एक्यूरेट समझते हैं. आपके कैलसी से भी अगर कोई बड़ा आंसर आ रहा है तो यू कैन ऑलवेज ट्रंकेट एट अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस. ओके, सो नाउ लेट्स ट्राई एंड रन दिस. पहला नंबर में डाल रहा हूँ 13.49, सेकेंड नंबर में डाल रहा हूँ 2.34 और इसका प्रोडक्ट आया 31.5666. तो यहाँ आप देख सकते हो कि अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस उसने आंसर जनरेट करके दिखा दिया है. क्लियर विद दिस कोड? यस विल सर. जस्ट पेस्ट इट टू योर चैट बॉक्स. और आप बिल्कुल टेंशन मत लो, आप तीनों ही हो तो कुछ भी डाउट है प्लीज पूछ लेना. ठीक है, लेट्स गो अहेड विद द नेक्स्ट कोड नाउ. अब तक हमने क्या क्या सीखा? इनपुट लेना सीखा, आउटपुट लेना देना सीखा, 2 टाइप के डेटा वेरिएबल्स सीखे और कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन करना सीखा इन 4 प्रोग्राम्स में से. अभी हम थर्ड टाइप का डेटा टाइप देखेंगे जिसमें हम कैरेक्टर यूज करेंगे. अब तक हम डबल और इंट पे काम किए हैं, तो अभी कैरेक्टर या फिर %c से हम काम चलाएंगे. इसमें हम यूजर से एक कैरेक्टर लेंगे और उसकी ASCII वैल्यू दिखाएंगे.
तो एस की वैल्यू होती क्या है, बेसिकली जब कंप्यूटर कोई भी प्रोग्राम स्टोर करता है तो वो एस की फॉर्मेट में स्टोर करता है, मतलब 0 to 255 के बीच में वो जो भी है ABCD उसको स्टोर करता है। तो हम आज अपने नाम के पहले कैरेक्टर की एस की वैल्यू ढूंढने का कोड करेंगे। ठीक है, मेरा नाम निनाद है, तो आई विल ट्राई टू फाइंड व्हाट इज द एस की वैल्यू फॉर कैपिटल N in the C programming. So to do that, I will go to the file, I will go to the new, I will select file again, C++, click go, click next, C programs, click next. Then I will select, this is my revision program 5. So I will say REV5, click save. Then we will click finish. Then I will paste this code. Again control दबा के मैं zoom कर रहा हूँ ताकि कोड इजीली विजिबल रहे। ठीक है, अब हम ये कोड समझने की कोशिश करते हैं कि इस कोड में हो क्या रहा है। पहली 2 लाइन एज इट इज कांस्टेंट है, लास्ट की 2 लाइन एज इट इज कांस्टेंट है। यहाँ पे ये प्लस साइन माइनस साइन से आप कोड छोटा बड़ा कर सकते हो अगर आपको लूप कहाँ शुरू हो रहा है और कहाँ खत्म हो रहा है अगर समझ में नहीं आ रहा है तो। उसके बाद कैरेक्टर सी करके हमने एक डिफाइन किया, फिर प्रिंटफ से एंटर अ कैरेक्टर, फिर हमने बोला परसेंटेज सी एम्फेसेंट सी, मतलब अभी मैंने वो कैरेक्टर पढ़ लिया। हाँ, अगर मुझे निनाद पढ़ना था तो मैं 5 बार स्कैनएफ करके भी ये कर सकता था और यहाँ पे CDEF करके दिखा सकता था। फिर मैंने प्रिंटफ एस्का वैल्यू ऑफ %C एंड देन यहाँ पे %C की जगह %D लिखा और दोनों बार मैंने C ही पास किया। तो अगर आपको एस्का वैल्यू ऑफ एनी कैरेक्टर देखनी है तो उसकी %D दैट इज इंटीजर वैल्यू प्रिंट करो, और अगर आपको वो इंटीजर एक्चुअल नंबर देखना है एस्का से तो %C लिख दो। ठीक है, एंड देन यू रिटर्न 0। सो लेट्स ट्राई एंड रन दिस कोड। सो इट विल आस्क मी एंटर अ कैरेक्टर, मैं कैपिटल N टाइप करूंगा और उसका आंसर आया एस्का वैल्यू ऑफ कैपिटल N इज 78। यू कैन ट्राई योर नेम्स फर्स्ट नंबर, शायद आप सब एस से ही शुरू हो रहे हो बट यू कैन स्टिल फाइंड आउट। अच्छा, रुद्र R है। ठीक है, सो यू कैन ट्राई आउट एंड टेल मी कि व्हाट वाज योर आंसर। क्लियर टिल दिस एग्जाम? आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया है एस की वैल्यू का? लेट्स गो टू द नेक्स्ट कोड। यहाँ पे हम डिवीजन जो होता है उसका कोशंट और रिमाइंडर निकालेंगे। तो हम पूरी डिवीजन न करके हम कोशंट और रिमाइंडर के साथ काम करेंगे। इसकी वजह से हम कुछ नए मैथमेटिकल ऑपरेटर सीखने वाले। तो लेट्स गो टू द कोड ब्लॉक्स, गो टू द फाइल, गो टू द न्यू, सिलेक्ट फाइल, C++, क्लिक गो, क्लिक नेक्स्ट, C++। यहाँ पे अभी हम फाइल नेम रिवीजन 6 प्रोग्राम है, so this is REV6, click save, click finish. Okay, I will just paste the code and zoom in. अब यहाँ पे आप फटाफट बताओ कि पहले लाइन में क्या हो रहा है, लाइब्रेरी इंक्लूड हो रही है, सही है। सेकंड लाइन में क्या हो रहा है, इंटीजर डिफाइन हो रहा है। तो इंटीजर डिविडेंड, डिवाइजर, कोशंट और रिमाइंडर। अब डिविडेंट मतलब जिसको डिवाइड करना है, और डिवाइजर मतलब जो डिवाइड करने वाला है वो। हाँ, और उनका जो आंसर आएगा वो कोशंट में स्टोर होगा। और रिमाइंडर के लिए डिवीजन की जगह ये % यूज होती है। अब बहुत बार बच्चे कंफ्यूजन क्या कर देते हैं, फॉरवर्ड स्लैश की जगह गलती से रिवर्स स्लैश मार देते हैं। हाँ, तो डिवीजन के लिए हमेशा फॉरवर्ड स्लैश यूज करना है सी प्रोग्रामिंग में, और रिवर्स स्लैश जब यूज होता है तो वो स्पेशल कैरेक्टर्स के लिए होता है, जैसे /n वगैरह हो गया फॉर द न्यू लाइन। इस कोडिंग में हम लोग नई चीजें क्या क्या सीख रहे हैं, एक तो डिवीजन ऑपरेटर, देन मॉड्यूलो ऑपरेटर जो कि रिमाइंडर जनरेट करता है। जैसे आपने लिखा 5 डिवाइडेड बाय मॉड्यूलो ऑपरेटर बाय 2, तो उसका आंसर आएगा 5 को 2 से डिवाइड करने की कोशिश करोगे तो 2 दूना 4, एक बचता है, तो वो एक जो बचता है वो रिमाइंडर है, वो यहाँ पे आंसर आता है।
तो डायरेक्ट रिमाइंडर कैलकुलेशन का फॉर्मूला है सी प्रोग्रामिंग में, विच इज टिपिकली हम जिसको परसेंटेज साइन कहते हैं उसको सी प्रोग्रामिंग में मॉड्यूलो ऑपरेटर कहते हैं, एंड दैट मॉड्यूलो ऑपरेटर विल गिव यू द आंसर ऑफ अ रिमाइंडर. ओके, now remember when we write %d inside printf, that is like a space holder, but when we write modulo operator outside the printf, it is modulo operation. So let's run this code. यहाँ पे मैं डालूंगा मेरा डिविडेंड है लेट्स से 29 और डिवाइजर है 6, तो मेरा आंसर आया क्वोशंट 6 4 द 24 और रिमाइंडर इज 5. सो दिस कोड इज रनिंग प्रॉपरली. यहाँ पे यूजर से स्कैन किया एंड डिविडेंड सारे ही इंटीजर थे, यहाँ पे ध्यान रखना इंटीजर ही रखना है. और यहाँ पे भले ही डिवीजन किया आपने पर इंटीजर्स का डिवीजन किया, इसलिए क्वोशंट का आंसर इनकम्प्लीट या रॉन्ग आया है. ठीक है, क्योंकि डिविडेंड बाय डिवाइजर मतलब 29/6 एक्चुअली कुछ तो 4 पॉइंट आना चाहिए था, पर वो पॉइंट कुछ तो आया नहीं. ठीक है, अब इसी कोड को मैं थोड़ा सा ट्विक करूंगा और इसमें फ्लोट लिख दूंगा ताकि तुमको डिफरेंस पता चले कि इंटीजर लेने में और फ्लोट लेने में डिफरेंस क्या होता है. तो इस वाले प्रोग्राम में हम थोड़ी सी ट्विकिंग करेंगे, इसको हम लिख देंगे फ्लोट. ठीक है, फ्लोट लिखेंगे तो ऑब्वियसली यहाँ चेंज करना पड़ेगा, इसको %lf या f लिखना पड़ेगा, ये भी %f हो जाएगा, ये भी %f हो जाएगा और ये भी %f हो जाएगा. नाउ इफ आई रीरन द सेम कोड, ओके, यहाँ पे मॉड्यूलो ऑपरेटर जो है वो एक तरह के इस पे ही काम करता है, तो फ्लोट टाइप के लिए मॉड्यूलो ऑपरेटर काम नहीं करता. सो आई हैव टू कीप डिविडेंड एंड डिवाइजर एज इंटीजर्स ओनली. सो वन थिंग आई विल डू इज आई विल जस्ट कमेंट आउट दिस. रीजन क्यों ये काम नहीं करता, कमेंट करने के लिए आपको 2 रिवर्स लाइनें मारनी होती है, जिससे आप प्रोग्राम कमेंट कर सकते हो. ये रिमाइंडर का कंसेप्ट सिर्फ इंटीजर्स के लिए ही बना है, तो रिमाइंडर फ्लोट पे काम ही नहीं करता, तो मॉड्यूलर ऑपरेटर कैन नॉट वर्क विद द फ्लोट. और इस तरह से आपको एरर की लाइन ये रेड डॉट से दिख जाती है, और क्या एरर है वो नीचे लाइन नंबर 9 में ये एरर है बता देता है वो. सो नाउ इट इज रनिंग अगेन. आई एम इनपुटिंग 29 और दूसरा 6, एंड दिस टाइम यू कैन सी 4.8333 इस तरह से आंसर आया, और रिमाइंडर जो कि कैलकुलेट ही नहीं हो पाया था उसकी जगह 0 आ गया. सो did you got, if you want a perfect division you have to keep it as a float. If you want a quotient and divisor, quotient and remainder, then you have to keep it as int. Am I clear with this codes? Yes sir. Okay, so let's go ahead. Now we go to the 7th program. Now we will see what is the internal size of these each of these variable data type. तो ये सब int टाइप, float टाइप, डबल टाइप या char टाइप, इनमें साइज डिफरेंस या मेमोरी में वो कितना खाते हैं वो हम सीखने वाले हैं अगले वाले कोड में. सो गो टू द फाइल, न्यू, go to the file again, C++, click next, C program, click next. I guess this is our revision program 7, I guess. So I will say REV 7 and then I will say finish. अब यहाँ पे देखोगे कि सारे पुराने प्रोग्राम यहाँ से एक्सेसिबल तो रहते ही है, और आप Ctrl+Z करके उनके जो भी करेक्शन किए थे मैंने उसको रिवाइव भी कर सकते हो. ठीक है, तो ये लास्ट वाला कोड मैंने पूरा रिवाइव कर दिया, 29 और 6, और आंसर 4 और 5 आ गया. ठीक है, अब ये नया जो कोड है 7, दिस इज अबाउट द साइज ऑफ ईच डेटा टाइप. सो इन टाइप, फ्लोट टाइप, डबल टाइप, char टाइप, ये 4 हमने डिफाइन किए, फिर हम उनके साइज देखेंगे. इस बार जो है printf स्टेटमेंट के अंदर हम %zu यूज कर रहे हैं, बिकॉज ये साइज ऑफ का यूनिट है. ठीक है, तो साइज ऑफ int टाइप, साइज ऑफ फ्लोट टाइप, यहाँ पे int टाइप लिखा है इसलिए हमने यहाँ पे int टाइप लिखा है, उसकी जगह आप और कुछ भी यूज कर सकते हो, बट डोंट यूज एनी स्टैंडर्ड सिंबल. और आप एक चीज ध्यान दो कि मैं जो फाइल नेम है वो कभी भी इन स्टैंडर्ड वर्ड्स में से कुछ नहीं लेता,
तो फाइल नेम एडिशन या फिर इंट या फिर डबल ऐसा कुछ मत दो। फाइल नेम शुड बी सोहेल 1 या फिर रैना 1 या फिर सक्षम 1 या फिर सरगम 1। मतलब आपके खुद के नाम तो कोई स्टैंडर्ड फंक्शन नहीं है होपफुली, तो आप उनको यूज करो और आगे बस इंटीजर नंबर देते जाओ ताकि आप नए नए प्रोग्राम स्टोर करते जाओ। ठीक है। अगर फाइल नेम ही उसमें से वेरिएबल नेम है, लेट से मैंने यहाँ वेरिएबल ABC डिफाइन किया और मैंने फाइल भी abc.c रन सेव की, तो प्रोग्राम पूरी तरह से सही होने के बावजूद रन नहीं होता। तो आपको ये ध्यान देना है। ठीक है। तो अब हम साइज देखेंगे, इंटीजर का कितना होता है, फ्लोट का कितना होता है और डबल का कितना होता है, कैर का कितना होता है। आपको पता है इसका आंसर क्या आना चाहिए? कौन बताएगा? सोहेल, सरगम, रुद्र। इंट कितना मेमोरी इंट के लेता है? लिए 4 वो आएगा शायद। गुड, इंट के लिए 4। फिर फ्लोट के लिए? 4 सर सेम ही। फ्लोट भी 4। फिर फ्लोट के लिए डबल? डबल 8, डबल फ्लोट डबल के लिए 8 आएगा शायद। फ्लोट और डबल के लिए 8 आएगा। और कैर के लिए? नो सर, फ्लोट के लिए कैर आता के है लिए भी 8। फ्लोट उसके लिए आता है 8। ओके। और डबल कैर के लिए? डबल के लिए 8। डबल क्लिक। वो होता है ना सर 8। और कैर के लिए? कैर के लिए सर 1। ठीक है, लेट्स रन एंड सी यस व्हाट सर 1। whether your answers were correct or not. So first one is 4 which is int, second one is float which is again 4। हाँ, तो पहले दो के लिए 4 आता है, डबल के लिए 8 बाइट स्टोर होते हैं और कैर के लिए 1। तो आपने ज्यादातर आंसर करेक्ट दिए। सिर्फ फ्लोट के लिए 8 नहीं होता, फ्लोट के लिए भी 4 ही होता है और इंट के लिए 2 होता है। कुछ कुछ मशीन्स में या पुराने सी प्रोग्राम में इंट के लिए 2 बाइट भी स्टोर होते थे, पर nowadays everything is 4 bytes. Okay. ओके सर। I will give you this code also. सर जो %ZU लिखा है उसकी जगह आप %D डालें तब भी यही सेम रिजल्ट आएगा। ZU की जगह Z मतलब बेसिकली अपने को अनसाइंड इंटीजर जो है, तो इस तरह से हम ZU मतलब अनसाइंड के लिए यूज करते हैं हम। तो %D जब डालोगे इसको, हाँ, इस तरह से यस कह रहे सर। हो ना तुम, और कोड को यस सर। रीरन करोगे, तो उस केस में तुम्हारा आंसर जो है वो वही रहने वाला है। ठीक है, क्योंकि वो नंबर पूरे थे। यस सर। ठीक है, पर नेगेटिव नंबर आने नहीं वाला। और साइज ऑफ इस फंक्शन का जो आउटपुट है वो टिपिकली ZU फॉर्मेट में होता है, सो दैट्स व्हाई वी राइट ZU। ओके सर। Z जो है वो इंडिकेट करता है कि इंटीजर आने वाला है और U जो है वो इंडिकेट करता है कि अनसाइंड मतलब पॉजिटिव इंटीजर आने वाला है। तो इस तरह से ZU यूज कर देते हैं हम। तो यू कैन सी आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सिंप्लिसिटी के लिए D लिखोगे तो चलेगा, सिंस वी नो एवरीथिंग इज गोना बी इंटीजर ओनली। So let's go to the next code. So अभी हमने प्रोग्राम के साइजेस निकाल लिए। नेक्स्ट इज, अभी हम लॉन्ग वर्किंग का लॉन्ग का यूज करेंगे, डबल लॉन्ग और हर तरह के साइजेस। तो ये उसी तरह का कोड है। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग अ सेपरेट कोड, व्हाट आई विल डू इज आई विल just use a part of this code into our earlier code. Okay. तो हम यहाँ पे कुछ और डेफिनेशंस करेंगे, जैसे इंट a हो गया, लॉन्ग b हो गया, फिर लॉन्ग लॉन्ग c हो गया, फिर डबल e हो गया और लॉन्ग डबल। सो ये कुछ नए डेफिनेशंस है जिसको हम देखेंगे और फिर उनके वैल्यू भी अपन प्रिंट करेंगे। यहाँ पे देखो, दो कोड मर्ज करने का मैं तरीका दिखा रहा हूँ कैसे करना होता है। आपके शुरुआत के जो लाइन है वो एज इट इज रखे मैंने, फिर मैंने जो रिटर्न 0 था उसको हटा दिया। एक ही रिटर्न 0 रहेगा पूरे कोड में।
एंड देन आई मेड श्योर कि कोई भी वेरिएबल नेम रीराइट नहीं हुआ है। तो यहाँ पे ABCDEF थे और ऊपर int टाइप, फ्लोट टाइप, डबल टाइप और कैर टाइप था। तो ये प्रोग्राम काम करेगा और इस बार हम देखेंगे कि कितना साइज अलोकेट होता है हर एक को। तो यहाँ पे देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंट 4 बाइट लेता है, फ्लोट 4 बाइट लेता है, डबल 8 बाइट लेता है, कैर 1 बाइट लेता है। हाँ, वापिस इंट हमने 4 बाइट वही लिखा था कोड। लॉन्ग इंट जो है ये भी 4 बाइट ही लेता है। हाँ, तो जिस जिस मशीन पे सिर्फ इंट 2 बाइट दिखा रहा है उसके यहाँ लॉन्ग बिट 4 बाइट ही दिखाएगा। तो लॉन्ग इंट इज ऑलवेज 4 बाइट्स वेयर एज इंट कैन बी 2 बाइट और 4 बाइट डिपेंडिंग अपॉन what kind of machine you have. Next is long int which is 8 bytes, then double again 8 bytes. So you can see long int और double ये दोनों सेम ही है। डिफरेंस क्या है, लॉन्ग int में सब इंटीजर स्टोर होंगे, वेयर एज डबल में आप 12.5 जैसे नॉन कंप्लीट इंटीजर्स भी स्टोर कर सकते हो। देन लॉन्ग डबल विच इज द हाईएस्ट, which is around 12 bytes per memory per location. Okay, so this is how you do this program of measuring the actual sizes inside the C program. अब मैं ये exactly मेरे मशीन के आउटपुट्स बता पा रहा हूँ। आपके मशीन पे अगर पुराना विंडोज का मशीन है और उस पर आप पुराना C प्रोग्रामिंग रन कर रहे हो डॉस वाला, तो ये नंबर अलग आएंगे। ठीक है, आपके यहाँ भी मोस्टली यही आने चाहिए इफ यू आर यूजिंग द सेम मशीन लाइक 10th जनरेशन i3 वगैरह। सो आपको सेम ही आंसर आएंगे। लेट्स गो टू द नेक्स्ट कोड नाउ। So now we move on to the program which is working, demonstrate of working of long. शायद हमने एक कर लिया ना। So now we will see how to swap the two numbers. ठीक है, तो टेम्पररी वेरिएबल करके यू कैन स्वैप द टू नंबर्स। लॉजिक बताएगा कोई क्या होगा इस प्रोग्राम का, स्वैपिंग ऑफ द टू नंबर्स का? How you can swap the two numbers? इसमें जनरली क्या करते हैं? हाँ बोलो सर। हम 3 वेरिएबल्स डिफाइन करेंगे जिसमें पहले 2 वैल्यूज पहले 2 वेरिएबल्स में असाइन कर देंगे। फिर पहले वाले वेरिएबल का वैल्यू सेकंड वाले वेरिएबल में डालेंगे, सेकंड वाले का थर्ड वाले में, और थर्ड वाले का वापस फर्स्ट वाले में। ठीक है, यहाँ पे एक तुमने गड़बड़ कर दी। जब पहले वाले का दूसरे में पहले ही कर दोगे तो दूसरे का ओरिजिनल वैल्यू डिलीट हो गया। लॉजिक तुम्हारा सही था। तो तुमको हमेशा क्या करना है, पहले 2 वेरिएबल डिफाइन करने हैं, तीसरा एम्प्टी रखना है। फिर जो पहले वाले का वैल्यू उसको थर्ड वाले में डालना है, एम्प्टी में डालना है। ठीक है, और फिर सेकंड वाले को फर्स्ट में ले आना है, और फिर जो एम्प्टी में थर्ड में जो वैल्यू गया था उसको सेकंड में ले आना है। ओके सर। ठीक है, वही चीज हम यहाँ पे करने वाले हैं। सो दिस विल बी आवर नेक्स्ट प्रोग्राम। यहाँ पे 3 वेरिएबल है, फर्स्ट, सेकंड और टेम्प। नाम भी उनके कैसे दिए गए, आसानी से याद रह जाने वाले। ठीक है, फिर हमने यूजर से उनके वैल्यूज मांगे, पहला वैल्यू बताओ। फिर उसने 2 वैल्यूज अपने को दिए। फिर हम बोल रहे हैं कि टेम्प में फर्स्ट वैल्यू हम लोड करेंगे। ये हमने टेम्प में फर्स्ट वैल्यू लोड किया। फिर फर्स्ट इक्वल टू सेकंड, तो सेकंड का वैल्यू फर्स्ट में ले आए, एंड फिर सेकंड इक्वल टू टेम्प। ठीक है, इसके अलावा भी प्रोग्रामिंग का जब टेस्ट होगा तो आपको पूछेंगे और कोई तरीका है, ये स्वैप वेरिएबल मुझे यूज ही नहीं करना है। तो आप क्या कर सकते हो कि इन दोनों को एडिशन कर दो और फर्स्ट में स्टोर करो, फिर फर्स्ट को सेकंड से सब्ट्रैक्ट कर दो, और फिर वापस फर्स्ट को सेकंड से सब्ट्रैक्ट कर दो। तो इस तरह से आप बिना टेम्प वेरिएबल यूज किए भी स्वैपिंग कर सकते हो। समझ में आया कि मैंने क्या बोला? यस सर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे ए में वैल्यू था 5, बी में वैल्यू था 6। ठीक है, अब मुझे नया वेरिएबल तो लाना नहीं, तो व्हाट आई विल राइट इज ए इक्वल टू ए प्लस बी। इससे क्या हो जाएगा, ए की नई वैल्यू हो जाएगी 5 + 6 विच इज 11। ठीक है, देन आई राइट बी इक्वल टू ए माइनस बी। हाँ, अब ए की नई वैल्यू क्या थी, 11, विच इज इक्वल टू 11 माइनस बी की पुरानी वैल्यू क्या थी, 6।
तो अभी बी में क्या आंसर आ गया 5, करेक्ट। देन आई विल राइट a इक्वल टू a माइनस बी। तो अभी a में अभी भी क्या वैल्यू है 11 ही है, और b की नई वैल्यू क्या आ गई थी 5, तो a में क्या आ गया 6। तो आप देखो अभी a की नई वैल्यू क्या हो गई है 6, b की नई वैल्यू क्या हो गई है 5, जो कि ओरिजिनल नंबर का स्वैप्ड वर्जन है। समझ में आया? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है कि विदाउट यूजिंग टेम्प वेरिएबल हाउ यू कैन स्वैप द टू नंबर्स। ठीक है, so let's go ahead. Next is program to check whether the number is even or odd. ये तो बहुत आसान है, मॉड्यूलो 2 ऑपरेटर ले लो, ठीक है, उससे डिवाइड कर दो। अगर मॉड्यूलो 2 ऑपरेशन 0 आया, हाँ मतलब 2 से डिवाइड होने वाला नंबर है, तो वो इवन हो जाएगा, बराबर है। और अगर 2 से डिवाइड नहीं होने वाला नंबर है तो वो ऑड हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे अभी नई चीज क्या सीख रहे हैं, इफ लूप यूज करना। ठीक है, तो एक तो इफ है या फिर एल्स है, एक तो वो 2 से डिविजिबल है या नहीं है, दो ही केस है। तो यहाँ पे मैं नम मॉड्यूलो 2 ऑपरेटर इक्वल टू 0 है क्या चेक करूंगा। अगर है तो आई विल से दैट नंबर इज इवन, अदरवाइज द नंबर इज ऑड। ठीक है, सो लेट्स रन दिस कोड। एंटर एन इंटीजर, मैंने बोला 45, आंसर क्या आना चाहिए odd. ठीक है, सो देखो आंसर आ रहा है ऑड। अब यहाँ पे सी में इफ का सिंटैक्स कैसे लिखते हैं, इफ फिर ब्रैकेट में जो भी आपको लिखना है वो नंबर, जो भी कंडीशन है वो उसके अंदर लिख दो और फिर ब्रैकेट क्लोज करो। यहाँ पे गलती से भी सेमीकोलन मत देना, ठीक है, वरना वो इफ उधर ही टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, फिर जो भी सेंटेंस तुमको लिखना है, मैं कभी भी नहीं चाहूंगा कि आप ऐसे लिखो, आप हमेशा करली ब्रैकेट शुरू करके उसके अंदर सेंटेंसेस लिखो, भले ही एक सेंटेंस हो। समझ में आया? ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है कि डायरेक्ट लिख देना। ठीक है, सिमिलरली एल्स के लिए भी आपको वही चीज करनी है, करली ब्रैकेट ओपन करो, करली ब्रैकेट क्लोज करो। ठीक है, एंड नाउ इफ यू ट्राई टू रन दिस कोड अगेन नथिंग विल चेंज, लेट्स से 32 एंड इट शुड बी शो मी एन इवन। ये आपको समझा मैंने, करली ब्रैकेट का क्या समझा है वो समझ में आया? सर बट वो एक स्टेटमेंट के लिए ऑप्शनल होता है ना। हाँ बराबर है, जरूरी नहीं है कि करली ब्रैकेट दिया जाए, पर मैं हमेशा चाहूंगा कि स्टूडेंट हमेशा करली ब्रैकेट दे, ताकि उनको याद रहे कि कहाँ से शुरू हुआ एल्स का लूप और कहाँ खत्म हुआ। बराबर है, ये ऐसे मुझे करने हो सकता है ना, इफ कहाँ शुरू हुआ खत्म हुआ दिख जाता है। अगर करली ब्रैकेट नहीं दोगे तो वो समझ में नहीं आता, और कितने ब्रैकेट ओपन किए कितने क्लोज किए, ये सवाल जिंदगी में कभी ना कभी तो तुमको जरूर आएगा, और उस वक्त तुम याद करोगे कि सर ने ऐसे करने बताया था। ठीक है, और हमेशा याद रखो, अच्छा प्रोग्रामर अगर कोई ब्रैकेट खोलता है तो उसके आगे का क्लोजिंग ब्रैकेट भी उसी वक्त जनरेट कर देता है। कभी भी सिंपली ब्रैकेट खोला और भूल गए ऐसे मत करो। हाँ, जो भी ब्रैकेट तुम खोलोगे उसका क्लोजिंग ब्रैकेट प्रोग्रामर हमेशा टाइप करके ही आगे का प्रोग्रामिंग करता है, याद रखना ये। I will just paste this code to your chat box again. समझ में आ रहा है? बहुत बोर हो रहा है तो मुझे बताओ, आई कैन स्टॉप दिस लेक्चर। हाँ, क्लियर हो गया इवन ऑड का प्रोग्राम? यस सर। नेक्स्ट इज वॉवेल और कॉन्सोनेंट का प्रोग्राम है। वॉवेल मतलब ए ई आई ओ यू में से अगर है तो, ठीक है, और अगर वो उसमें से नहीं है तो बचे हुए सारे होंगे कॉन्सोनेंट। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, हम पहले चेक कर रहे हैं कि
AEIOU छोटे केस में से कोई लेटर है या फिर बड़े केस में से कोई लेटर है। तो अगेन ये प्रोग्राम भी इफ पे बेस्ड है, पर यहाँ हम और एक नई चीज सीखने वाले हैं कि हम और ऑफ द ऑपरेशन कैसे करते हैं। तो अगेन आई विल गो टू सी प्रोग्राम, क्लिक गो, क्लिक नेक्स्ट, click C programming, click next, and this time I will select, this will be my revision program 10. So REV 10. Click finish. So यहाँ पे देखो stdio.h किया हमने, let me just zoom in. फिर हमने दो चीजें डिफाइन की, अपर केस वॉवेल और लोअर केस वॉवेल. We ask user to enter a alphabet, user enters that. देन अगर लोअर केस वॉवेल जो है वो हमने चेक किया कि अगर C इज इक्वल टू A या फिर E या फिर I या फिर O या फिर U. सिमिलरली लोअर केस की जैसे ही अपर केस वॉवेल भी डिफाइन कर दिए. एंड फाइनली अगर दोनों में से कोई भी एक है तो ये नई चीज हम सीख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड और ऑपरेशन. और मतलब अगर ये हाई है या वो हाई है, हाँ, A और B, अगर तुम आते हो या तुम्हारा दोस्त आता है, एनीथिंग इज फाइन विथ मी. तो ये और जो है ये थोड़ा लीनियंट बंदा है, ठीक है. और ऑपरेटर मतलब ये भी चलेगा या ये भी चलेगा. हाँ, समझ में आया और ऑपरेटर. और इफ एल्स तो हम पहले ही देख चुके हैं, और शुरुआत के 2 लाइन और एंड के 2 लाइन हमेशा कांस्टेंट है, ठीक है. तो AEIO में से एक है और उसको हम वॉवेल बोलते हैं, और अगर वो नहीं है तो हम इसको कंसोनेंट बोलते हैं, ठीक है. तो लेट्स रन दिस कोड. यहाँ पे मैं अल्फाबेट डालूंगा R एंड इट शुड शो मी इट्स अ कंसोनेंट. Clear with this? Let's go ahead and do the next program. Next program is to check whether the largest number out of 3 कौन सा है, ठीक है. तो हम 3 नंबर में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है वो ढूंढ रहे हैं. इसको करने के 2 तरीके हैं, एक तो इफ स्टेटमेंट्स यूज करके या फिर इफ एल्स इफ यूज करके. हम दोनों तरीके से देखेंगे कोड. सो लेट्स स्टार्ट विद द कोडिंग. यह अभी आपको याद होना चाहिए कि पहले यहाँ फाइल पे क्लिक करो, फाइल सिलेक्ट करो, सी प्रोग्रामिंग लो, क्लिक गो. जो ऑनलाइन कर रहे हैं उनको ये सब नहीं करना पड़ता, पर ये तरीका होता है. सिलेक्ट द फाइल, यहाँ पे टाइप REV 11, ओके, क्लिक फिनिश. आप यहाँ पे भी देख सकते हो सारे के सारे कोड अब तक हमने जितने भी किए वो सारे के सारे यहाँ भी स्टोर्ड है. अब हम नया कोड देखेंगे. अगेन आई एम जूमिंग इन. तो यहाँ पे हमने क्या किया, पहले ये पहले 2 लाइन हमेशा जैसे सेम है, डबल N1 N2 N3. यूजर को 3 नंबर एंटर किए और LF करके उनको स्कैन कर लिया, ठीक है. फिर हमने चेक किया अगर N1 N2 से बड़ा है एंड N1 N3 से बड़ा है तो फिर लार्जेस्ट नंबर इज N1, ठीक है. सेकेंड चीज हमने क्या चेक की, अगर वैसा नहीं है, हाँ, तो इफ N2 इज ग्रेटर देन N1 एंड N2 इज ग्रेटर देन N3 देन N2 इज लार्जेस्ट. अगर वो भी नहीं है तो और एक इफ. तो यहाँ पे देखो तीनों इफ है, ये इसमें कोई एल्स इफ नहीं लगा है, ये सीरीज ऑफ इफ स्टेटमेंट्स है. क्योंकि एनीवेज ये दो एक साथ सेटिस्फाई होना पॉसिबल नहीं है जब तक वो दोनों नंबर सेम नहीं हो, ठीक है. और फिर फाइनली N3 अगर N1 से बड़ा है और N3 N2 से बड़ा है तो यहाँ पे हम नई चीज क्या सीख रहे हैं कि डबल एंड कैसे यूज करना है. एंड मतलब सिर्फ तुम या वो ऐसे नहीं, मुझे दोनों चाहिए. हाँ, तो एंड मतलब ए भी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए और उसके साथ बी भी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए. तो ये थोड़ा स्ट्रिक्टर वेरिएबल है या स्ट्रिक्टर ऑपरेटर है. सो ए एंड बी इट्स अ स्ट्रिक्ट ऑपरेटर, ठीक है. एंड नाउ इफ आई run the code, it will ask me for 3 numbers. Let's say my first number is 3, second number is 5 and third number is 7.
सो इट इज सेइंग दैट 7 इज द लार्जेस्ट नंबर विच इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, अब मैंने ऑर्डर में एंटर किया. अगर मैं कोई ऑड ऑर्डर में एंटर करता कि 67 फिर 5 और 4, तो भी बोलता कि 67 वाज द लार्जेस्ट नंबर. ठीक है, तो इसमें इफ एल्स लैडर की जगह सिर्फ इफ स्टेटमेंट, सीरीज ऑफ इफ स्टेटमेंट यूज किया है. वी कॉल इट अ सीक्वेंशियल इफ स्टेटमेंट्स. ये इस तरह के प्रोग्रामिंग का एग्जांपल है. क्लियर टिल दिस पॉइंट? कोई डाउट है बच्चों? सर हाँ सोहेल पूछो. सर हम डबल क्यों यूज करते हैं, हम इंट क्यों नहीं यूज करते इसमें? इंट भी चल जाता, कोई प्रॉब्लम नहीं है. सर डबल मैं होने की जरूरत नहीं है. आप चेक ऐसे ना, ये भी चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें. डबल यूज करने के पीछे कोई लॉजिक नहीं था. सर आप इसको रन कीजिए एक बार इंट को. हाँ क्या हुआ? सर इंट को रन कीजिए, इंट करके फिर रन कीजिए कोड, वो नहीं रन होता है. नहीं हो रहा है क्या? ट्राई किया तुमने? बस सर मैंने पहले किया था ट्राई इसको. तो तुमने क्या ये किया था? यहाँ पे %d डाला था यस सर, तीनों जगह. और ये %d किया था, यस सर. फिर भी रन नहीं हुआ. क्यों? कंपेयर नहीं कर पाया क्या वो इंटीजर्स को? सर क्या हुआ उनको? चलो देखते हैं, ये भी नया तरह का एरर है. तो मेरे 3 इंटीजर है, 2, 5 और 3. 5 लार्जेस्ट नंबर हो तो गया रन, कोई प्रॉब्लम नहीं था. सर मुझको फिर एरर दिखा रहा होगा. तो तुम जरूर कुछ यहाँ या वहां भूल गए होगे वो कन्वर्ट करना, इसकी वजह से एरर आ रहा होगा. एनीवेज मैं तुमको ये कोड दे के रख रहा हूँ चैट बॉक्स में, तो तुम वहां से उठा सकते हो, है ना? ओके सर. हुआ ना रन? तुम्हारे सामने ही तो किया मैंने, बराबर है? यस सर, देखा मैंने. चलो सर मैं नेक्स्ट कोड देखते हैं. हाँ वो बोलो. अभी एल्स इफ के साथ यही कोड लिखना होता तो क्या करना होता? जो इफ की जगह हम इफ फिर एल्स इफ और फिर एल्स इफ लिखते, तो उसमें एक लास्ट कंडीशनल स्टेटमेंट डालने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि अपना 2 इफ से वो पास हो गया है, तो तीसरा वाला कंडीशन ही ट्रू होना चाहिए. तो लेट्स गो टू द फाइल, न्यू, फिर फाइल, C++ का कोड है. क्लिक नेक्स्ट, क्लिक नेक्स्ट. यहाँ पे फिर दिस इज रिवीजन नंबर 12, सो REV 12. क्लिक सेव, क्लिक फिनिश. ठीक है, अब यहाँ पे भी यूजर से हमने 3 नंबर लिए, सेम प्रोग्राम है. पहले हमने n1 n2 से बड़ा है और n1 n3 से बड़ा है चेक किया. अगर ऐसी केस है तो n1 को हमने लार्जेस्ट बता दिया. एल्स मतलब n1 सबसे बड़ा नहीं है, ये प्रूव हो गया. फिर n2 n1 से बड़ा है और n2 n3 से बड़ा है चेक किया. वो भी अगर सेटिस्फाई होता है तो n2 सबसे बड़ा है दिखा दिया. अगर वो भी नहीं होता तो मैं वापस एल्स के अंदर इफ तीसरा लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने पहला और दूसरे से कंफर्म कर लिया n1 और n2 सबसे बड़े नहीं है, तो सबसे बड़ा n3 ही होना है, क्योंकि 3 ही नंबर थे. तो ये मेरा फाइनल कोड थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो गया इफ एल्स इफ यूज करके, क्योंकि ये पहले चेक कर चुके हैं ना, तो उसको यूज क्यों नहीं करते? वो पिछले वाले कोड में वैसा नहीं था, उसमें चेक करने के बावजूद हम वापस चेक किए जा रहे थे. तो मेरे 3 नंबर होंगे 4, 5 और 6, और 6 सबसे बड़ा नंबर है. I will paste this method also. याद रखना, जब आप इंटरव्यू में वगैरह अपीयर करोगे तो ये सब क्वेश्चन पूछते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरह से फर्स्ट ईयर के सिखाए हुए कंसेप्ट आपको माइक्रोसॉफ्ट गूगल के इंटरव्यू तक पहुंचने तक यूज किए जाते हैं या पूछे जाते हैं. ठीक है, तो याद रखना ये सारे कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जिंदगी भर जब भी इंटरव्यू होगा ये सब यूज किए जाएंगे. वो चाहते हैं कि फर्स्ट ईयर से आप ये कंसेप्ट याद रखो. ठीक है, सो लेट्स गो अहेड विद द नेक्स्ट प्रोग्राम. यहाँ नेस्टेड इफ का भी प्रोग्राम है, which is another way of finding out. So nested if वाले में क्या होता है, आपको एक के अंदर एक if डालने होते हैं. ठीक है, so उसमें क्या करना होता है आपको? nested if वाले में पहले चेक करो कि n1 सबसे बड़ा है
n1 n2 से बड़ा है, एंड करने की जरूरत नहीं, अगर है तो n1 n3 से बड़ा है, नहीं है तो n3 सबसे बड़ा है। सेकेंड इज n2 n3 से बड़ा है, अगर है तो एल्स वाले में ऑलरेडी हमने n1 n2 चेक कर लिए थे, अभी n2 n3 चेक कर लिए। तो इस तरीके से हम बहुत कॉम्प्लेक्स तरीके से सेम चीज लिख रहे हैं क्योंकि हमने डबल एंड यूज नहीं किया। ठीक से समझो इस कोड को, ये काम कैसे करता है, लाइन बाय लाइन हम देखते हैं। अगेन आई विल गो टू द फाइल, I will say C++, click next. यहाँ पे this is my revision code number 13. And then I will paste this code. यहाँ पे हमने पहले लाइन में क्या चेक किया, n1 बड़ा है या n2 बड़ा है, ठीक है। अगर इस लाइन का रिजल्ट ट्रू आता है तो n1 n2 से बड़ा है, और अगर ट्रू नहीं आता तो इस एल्स में जब वो जाएगा तो n1 n2 से छोटा है, ये कंफर्म होके जाएगा। हाँ, तो एक कंडीशन यहाँ चेक कर ली। फिर n1 n3 से बड़ा है अगर चेक किया तो n1 सबसे बड़ा, ये प्रूव हो जाता है। नहीं तो ऑलरेडी n1 n2 से बड़ा है और n3 n1 से बड़ा है, ये प्रूव हो जाता है, इसलिए n3 सबसे बड़ा है। वेराज इस सेल्स में क्या होता है कि n1 जो है वो n2 से छोटा है, ये प्रूव हो गया था, तो सिर्फ n2 और n3 को चेक किया, अगर n2 बड़ा है तो n2 सबसे बड़ा है, और n2 n3 से छोटा है तो n3 सबसे बड़ा है, ये प्रूव हो गया। तो ये प्रोग्राम जो है ये कंप्यूटेशनली एफिशिएंट है देन एनी अदर प्रोग्राम, पर लिखने में सबसे टफ है। So I will just share this code also with you. I want all of you to run these codes one by one, ठीक है। नेक्स्ट इज बहुत सिंपल कोड है, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपको मैथ्स का ये फॉर्मूला याद है, -b प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a is the final roots of your quadratic equation if discriminant is 0, if discriminant is greater than 0, if discriminant is equal to 0, then the roots are same, that is -b upon 2a, and if discriminant is greater than 0, तो ये वाली कंडीशन जो है उसमें इमेजिनरी का i डालना पड़ता है और उसको अंडर रूट प्लस माइनस j लगाना पड़ता है। तो ये ऑपरेशन करने के लिए ये i वाली चीज जो है वो मैथ के अंदर है, तो हम पहली बार math.h को भी इंक्लूड करेंगे इस प्रोग्राम में। तो ये प्रोग्राम थोड़ा लेंथ में बड़ा हो जाता है, पर एनीवेज इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर फॉर इट। सो लेट्स गो फाइल, न्यू फाइल, C++। अभी वही देख देख के तो एटलीस्ट तुमको बाय हार्ट होना चाहिए कि क्या प्रोसीजर होती है पहले वाली। सो दिस विल बी माय रिवीजन प्रोग्राम नंबर 14। आई विल जस्ट पेस्ट दिस कोड हियर। अब हम सिर्फ -b प्लस और माइनस मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac जो है उसको हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, और वो अगर 0 से बड़ा हुआ तो ये फॉर्मूला लगता है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला डायरेक्ट लगा देते हैं विदाउट कंसिडरिंग द डिस्क्रिमिनेंट, जो कि बड़े इंटरव्यूज में घातक हो जाता है, क्योंकि वो चाहते हैं कि ना ही आप चीज़ें याद रखो, आप चीज़ें प्रॉपरली याद रखो। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक मैथ्स का प्रॉब्लम है। तो कब इमेजिनरी पार्ट आता है, कब रियल पार्ट आता है। इवन इफ यू यूज द सेम फॉर्मूला हियर, इट्स ओके, यू विल गेट अ नेगेटिव रूट विच इज अगेन प्रोड्यूसिंग दैट आई। सो ये सिंगल फॉर्मूला से भी रिजल्ट आ जाएगा, बट यू शुड बी अवेयर दैट अगर निगेटिव रूट आया तो तुम्हारा प्रोग्राम नहीं कर पाएगा। तो उसको पहले से बता दो कि डिस्क्रिमिनेंट अगर थर्ड पार्ट में है तो नेगेटिव रूट आने वाला है, एंड यू हैव टू कैलकुलेट द रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट सेपरेटली। So let's try how to do that. You are asking three coefficient, that is ax square plus bx plus c from the user, and with that quadratic equation you can say b square minus 4ac will be the discriminant value. If discriminant is greater than 0, then this is your answer. यहाँ पे पहली बार हमने sqrt फंक्शन यूज किया है, and if discriminant is equal to 0, so this is your answer, and else this is your answer. So anyways, all the three cases
यहाँ पे देखो वो आई लाए कहाँ से, हम आई जो है वो यहाँ मैन्युअली डाला है, तो %lf के बाद हमने यहाँ से आई डाला है यूजर ने, एंड इफ यू रन दिस कोड लेट्स सी व्हाट इज द आउटपुट। अब यहाँ पे रन का सिंबल अगर नहीं दिख रहा है, इसका मतलब हमारा पुराना कोई कोड ऑलरेडी रनिंग है, तो यू हैव टू स्टॉप दैट कोड बाय प्रेसिंग एनी की, देन ओनली यू विल गेट द रन का सिंबल। So let's say 34A plus 12B and C is let's say 56, और इसका आंसर आया 0.8 plus 1.27i minus 0.18 minus 1.27i. These are the two roots of that equation. 34x square plus 12x plus 56 का आंसर. Okay, so is that clear with you? Yes, sir. Okay, so I will paste that code also here. I know मैं बहुत तेज जा रहा हूँ, पर ऑप्शन ही नहीं है क्योंकि कल अपना लास्ट लेक्चर है एंड वी हैव टू रश। बराबर है, कुछ कुछ पार्ट ऑफ द कोड्स जो है आगे के वो मैं रिकॉर्ड करके अलग से तुमको दे दूंगा सो दैट वी सेव ऑन द टाइम, पर मोस्ट ऑफ देम आर वेरी क्लियर। और एक बार बेसिक क्लियर हो गया तो आगे के कोड आप खुद से भी कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको यहाँ कोई कोड बहुत सिंपल लग रहा है तो वी कैन स्किप ऑल्सो। हाँ, यू जस्ट टेल मी कि सर ये बहुत आसान है, ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज लीप ईयर। लीप ईयर कैसे करेंगे? So this was the code of the three numbers like 4, 5 and 6. 6 was the largest number. लीप ईयर का फंडा आपको याद है? लीप ईयर, व्हेन वी कॉल इट अ लीप ईयर, पहले तो अगर ईयर Sir, when 400 से February डिवाइड में होता है, 29 days हो। हाँ, एवरी फोर्थ ईयर इज व्हाट वी कॉल अ लीप ईयर, जिसमें फरवरी में 29 डेज होते हैं या 365 डेज का ईयर होता है। ठीक है, उसके अलावा दो अलग कंडीशन है जो हम भूल जाते हैं कि वो 400 से अगर डिविजिबल है तो भी वो लीप ईयर रहता है, और 100 से डिविजिबल है तो भी वो लीप ईयर रहता है। ठीक है, और अगर 400, 100 और 4 से डिविजिबल नहीं है तो उसको हम नॉन लीप ईयर कहते हैं। दीज आर द फॉर्मूला। अब ये मोर और लेस नॉन टेक्निकल, मतलब सी प्रोग्रामिंग से इसका कोई लेना देना नहीं है, ये कंसेप्चुअल चीजें अगर इंसान को जनरल नॉलेज से पता नहीं है तो लीप ईयर का कोड लिखना मुश्किल हो जाता है। तो कुछ कुछ सी प्रोग्रामिंग जो आपके इंटरव्यूज में शेड्यूल होते हैं उसमें वो चाहते हैं कि आप थोड़ा जनरल नॉलेज भी रखो कि व्हाट इज लीप ईयर एंड व्हाट इज नॉट, एंड दैट्स व्हाई इस तरह के क्वेश्चन वो पूछ लेते हैं। So let me go back to the code blocks. This will be the last code for the day. Again I am teaching you, go to the empty file. Okay, अब empty file आप जब सिलेक्ट करते हो तो सी प्रोग्रामिंग की फाइल नहीं बनती। हाँ, तो इसीलिए हमेशा आप जब फाइल लोगे तो यहाँ से फाइल में जाके न्यू फाइल सिलेक्ट करो, C++ सोर्स ले लो, क्लिक नेक्स्ट, सिलेक्ट सी, यहाँ पे यू सिलेक्ट, दिस विल बी माय रिवीजन फाइल नंबर 15, click save, click next, finish and then you paste। यहाँ पे देखो जब अनटाइटल दिया था तो डॉट सी अपने आप नहीं आया था, आपको सी प्रोग्राम डायरेक्टली नोटपैड में लिखना है तो वहां भी लिख सकते हो, बट वाइल सेविंग यू हैव टू सेव इट एज डॉट सी फाइल। ठीक है, तो दिस इज अ वेरी सिंपल प्रोग्राम। इसमें हम सीखने वाली कंसेप्ट क्या है? मॉड्यूलो 4 ऑपरेशन, इक्वल टू 0, else if and finally else। so this is what we called a ladder if। ठीक है, एक के आगे एक if स्टेटमेंट्स आते हैं तो हम इसको if else की लैडर कहते हैं। ठीक है, इट इज नॉट a nested if else। ठीक है, इट्स अ लैडर if। लेट्स ट्राई एनी ईयर। so 2021, let's try this year whether it's a leap year or not। तो 2021 इज नॉट अ लीप ईयर, इसमें फरवरी के 28 दिन ही आएंगे, 29 दिन नहीं आएंगे। So this is the last code of the day।
and I will stop recording. If you have any doubts, you can ask. Otherwise, we will stop.